morning to all of you, class 12th. Today I will be starting the second video of our chapter, that is chapter 3, Deep Water, from your book Flamingo. And as you all know that in our previous video we have read that this chapter is the autobiography of William Orville Douglas. And here he's talking about his fear, that how he wants to overcome his fear of like drowning and swimming, or he wants to learn swimming at the age of 8 and 9 or 10 or 11 years, and how he tried his level best, how he got a pair of water wings and went to the pole. And move on to next page, that is page number 24. Here it is a picture which is given over here in this map kind of a thing, where the Yakima River is a tributary of Columbia River in eastern Washington, USA. The state is named after the indigenous Yakama people. So this map is not to sketch, map is not to scale. So before I would like to tell you about that today we'll be starting our paragraph that I hated to walk, and students come to page number 25. So I hated to walk naked into and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. So here what narrator tries to explain is that he tried that कैसे जो है नैरेटर कह रहा है कि आई हेटेड नेकेड इनटू इट, कि उसे हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, कि मुझे जो है विदाउट कपड़ों के पूल में जाना पसंद नहीं है, एंड शो माई स्किनी लेग्स, और उसे अपने स्किनी लेग्स को शो करना भी पसंद नहीं है. आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, मेरे को अपना जो प्राइड है या जो मेरा वो है उसको सबड्यूड करके मुझे आगे नहीं जाना है. सबड्यूड मीन्स उसे ओवरकम करके मुझे आगे जाना है, क्योंकि मैं ये स्विमिंग जो है और दिस टास्क आई वांट टू लर्न दैट. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Or from starting, however, had an aversion. So, aversion is what? A strong feeling of not liking it. Students, aversion is written over here that aversion is a strong feeling of not liking it. I have written over here for you a strong feeling of not liking. Okay, so aversion is here, the word is here, you can see that word. So aversion is that feeling which is not liked by our narrator of our chapter. So he said that is a कि मैं ये जो स्विमिंग टास्क है उसको मैं शुरू से ही पसंद नहीं करता हूँ. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड. अब वो अपनी प्रीवियस बात बता रहा है कि ये जो इसका नॉट लाइकिंग वाला जो फैक्टर है वो कब स्टार्ट हुआ. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और ये इंसिडेंट कब हुआ, जब उसके फादर उसको कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेके गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो दोनों ही सर्फिंग के लिए खड़े थे. आई हंग ऑन टू हिम, सॉरी सर्फ में खड़े थे, एंड आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. तो वो अपने फादर के साथ था. एंड स्वेप्ट ओवर मी, तो वेव्स आई उसके ऊपर और उसको अपने साथ बहा के ले गई. आई वॉज बरिड इन वाटर, उस वक्त उसे ऐसा लगा बिकॉज वो कम ही एज का था, ही वॉज लाइक 3 or 4 years ओल्ड, और वो पानी के समुद्र में जो लहरें आती हैं, जो वेव्स आती हैं, उनके बहाव के साथ साथ वो पानी में चला गया, और उससे ऐसी फीलिंग आई जैसे आज तो वो पानी में मरने ही वाला था. माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, उसकी जो सांस है एक बार को रुक गई थी, और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड, ही इज़ अफ्रेड ऑफ दैट. फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स.
उसके फादर जो हैं वो हंसे, बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। लेकिन उसके माइंड में ये एक डर आ गया कि अब जो है वो पानी से डरने लगा, क्योंकि एक बार उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ हियर। My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears, but in little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So students, what's happened over there, that my introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories. So your narrator is trying to say that कि वो जब स्विमिंग पूल में जब उसके साथ 3 or 4 years में ये इंसिडेंट हुआ था, आफ्टर दैट जब वो वापस 10 to 11 years की एज में स्विमिंग पूल में आया, तो उसकी जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, चाइल्डहुड मेमोरीज, वो जो हैं वो चाइल्डिश फियर्स वापस उसके माइंड में स्टर करने लगे, दैट मीन्स उसके दिमाग में घूमने लगे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में उसने अपना कॉन्फिडेंस वापस लाया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वो अपने वाटर विंग्स से पैडल कर ही रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, दूसरे बॉयज़ को देखते हुए वो भी उनकी तरह, लाइक एपिंग देम हियर मीन्स लाइक जैसे एक मंकी दूसरे मंकी को कॉपी करता है, काइंड ऑफ दैट, वो भी उनको कॉपी करके सीखने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और ऐसा उसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिनों को किया, 2 to 3 days, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर। और ये उसकी एक स्टार्टिंग थी, दैट हाउ टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और एट दैट पॉइंट वो कैसे अपने फियर को ओवरकम कर पाए। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और अचानक उसके साथ क्या हुआ है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, द प्लेस वॉज क्वाइट, वो पूल के पास कब गया, जब कोई भी पूल के आसपास नहीं था और उस जगह सब शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल एंड टिल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, जो वाटर है बिल्कुल शांत था, या कोई उसमें मूवमेंट्स नहीं थे। एंड द टिल्ड बॉटम वॉज, और उसका जो बॉटम है वो कैसा था, थोड़ा सा ऐसा टिल्ड बॉटम था। एंड क्लीन एज बाथ टब, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाथ टब में पानी भरा हुआ है। आई वॉज timid about going alone, वो थोड़ा shy, frightened, और at the same time timid here means nervous feel कर रहा था alone, पानी में जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए वो पूल के साइड में बैठ गया ताकि दूसरे भी आ पाए। आई हैड नॉट बिन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that show rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, how do you like to be ducked?" And what happens here in this paragraph? That I had not been there long when इन अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, जब वो वहाँ कुछ देर बैठा ही था, उसके बाद सडनली अ बिग ब्रूजर मीन्स अ पर्सन हु इज़ टफ एंड अग्रेसिव एंड इन्जॉय फाइट। सो सम बॉयज़ और सम पीपल आर लाइक दैट, जो कि स्ट्रॉन्ग, टफ और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर्स के होते हैं, बिहेवियर वाले होते हैं। दे आर लाइक interested in fight and all those things. So probably 18 years old, and the age of that boy is what, 18 years old. So that bruiser boy, he came near the narrator, and he had thick hair on his chest, और उसकी appearance कैसे थी, वो टॉल था, उसके हेयर्स जो हैं वो थिक थे, और चेस्ट पे भी थिक हेयर्स थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो एक फिजिकल स्पेसिमेन का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था, विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शो रिपलिंग मसल्स, और उसके लेग्स और आर्म्स पे उसकी मसल्स जो है, रिपलिंग मसल्स यानी स्मॉल जो वेवी मसल्स होती हैं वो शो हो रही थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया ज़ोर से। हाई स्किनी, तो उसने नैरेटर को देख के क्या कहा, हाई स्किनी, बिकॉज वो कैसा था, पतला था। हाउ डू यू लाइक टू बी
डग्ड, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ ऐसे करके. What he picked me up and tossed me into the deep end. And here in this paragraph he said that, और narrator mentioned that with that he picked me up and tossed me into the deep. और ऐसा कह के उसने उसे उठाया और उसको डीप वाटर के एंड में उसको टॉस, दैट मीन्स उसे फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. और अब नैरेटर अपने बारे में बता रहे हैं विलियम डगलस कि वो पानी में कैसे अंदर पहुँचे, सिटिंग पोजीशन में. स्वॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. उनके मुंह में पानी चला गया और बॉटम की एक तरफ चले गए. आई वॉज फ्राइटेंड. एक तो पहले ही वो अपने बचपन की मेमोरीज से बहुत ज़्यादा ओवरकम नहीं कर पा रहे थे. ही वॉज अफ्रेड ऑफ दोज मेमोरीज. बट अगेन उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ. बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन वो अपने विट्स यानी एक सूझबूझ से काम लेने वाले व्यक्ति थे. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड. और उसी वक्त उन्होंने प्लान किया. व्हेन द माई फीट हिट द बॉटम. जब उनके फीट बॉटम को हिट करेंगे नीचे पानी में जाते वक्त, आई वुड मेक अ बिग जंप. वो ज़ोर से जंप करेंगे. कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट. और फिर वो सर्फेस पे आ जाएंगे और लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और फिर वो इस तरह पूल के किनारे पर आ जाएंगे. सो वॉट हैपन्स ओवर हियर, वेन एवर जब किसी की भी बचपन में कोई इंसिडेंट होता है स्टूडेंट्स, सो वो इंसिडेंट को भूल पाना या उस फियर से ओवरकम करना, इट्स लाइक very difficult for people. But here in this story deep water or prose, here जो narrator है he is trying his level best to overcome all those things. So let's read next paragraph here. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made I thought was a great spring toward upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. So here in this paragraph, last one, it seemed a long way down. उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत उसको अभी और आगे मेहनत करनी है. Those 9 feet were more like 90. और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ सीखा हुआ नहीं होता, those who are like in the learning period, उन्हें हमेशा क्या लगता है कि छोटा सा रास्ता भी उन्हें बहुत लंबा नज़र आता है. एंड those who are like learned people, जिन्होंने कुछ लर्न कर रखा होता है ऑलरेडी, उनके लिए 9 फीट भी 90 फीट भी 9 का होता है. और जो जो लर्निंग पीरियड में होते हैं, जो नहीं सीखे हुए होते हैं, उनके लिए 9 फीट भी 90 फीट के इक्विवेलेंट था. सो अब नैरेटर अपने बारे में कह रहे हैं कि उसके साथ भी ऐसा था. बिकॉज अभी तक उसने स्विमिंग प्रॉपरली लर्न भी नहीं करी थी. वो उसका फर्स्ट थर्ड फोर्थ डे ही था एंड उसके साथ ये इंसिडेंट वापस हो गया. तो वो उसको 9 फीट का जो डिस्टेंस है, सॉरी, जो बॉटम से अप वाला जो उसको वो पार्ट ओवरकम करना था, वो भी अब उसे ज़्यादा लगने लग गया. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. और जैसे ही वो बॉटम को टच करने लगे, उसने अपने लेग्स को ऐसा किया जैसे वो बस्ट करके ऊपर जाएगा. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड. लेकिन जैसे उसके फीट ने बॉटम को हिट किया, ही जस्ट लाइक समन्ड हियर मीन्स टू कॉल अपॉन ऑल माई स्ट्रेंथ. उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को या एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कैसे ना कैसे वो ऊपर आ पाए. एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. और उसने देखा कि जैसा उसने सोचा था वैसा अपवर्ड करने के लिए उतना फोर्स काफ़ी नहीं था. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस. वो कह रहा है उसने इमेजिन करा. बॉब हियर मीन्स टू मूव क्विकली अप एंड डाउन लाइक अ कॉक. Cork is a light self material which comes from the outside or a type of a tree. So वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा था. Instant come up slowly. ऊपर स्लोली आने के बजाय आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग. और जैसे उसने अपनी आइज़ ओपन करी तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सो योर जो है कि कैसे सेकेंड टाइम भी जो हमारे इस चैप्टर में हाउ नैरेटर ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू लाइक लर्न स्विमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. बट बिकॉज ऑफ दैट वन बॉय, बिग ब्रूजर बॉय,
who picked him up and tossed him into that deep water and of the that swimming pool, and how narrator tries his level best that he would make a big jump to came to the surface, or he paddled to the edge of the pool, or like he just summoned his all strength and try to just come up with that water and edge of the pool, that all अभी उसकी एनर्जी इतनी लगाने के बाद भी ही इज़ नॉट overcome that particular thing. So move on to next page. So he said that उसने पानी में अपनी eyes खोली and he saw nothing over there. So we'll start a new video in our new with a new page. So till then students, stay safe and have a nice day.